Good morning student. Today in our 6th standard we are going to learn about our 14th chapter, that is water. Up till now we have discussed what is meant by evaporation of water, what are the factors that are responsible for the evaporation of water. Along with that we also discussed uh, what is mean by water cycle or what is mean by a rain cycle. So we saw that air, water, air and sunlight, they are responsible for the evaporation of water. As water get heated, it turn into water vapor. This water vapor is lighter than air, that is why it goes high into the sky and forms the clouds. These clouds, when they become very heavy, they start to pour in the form of water, in the form of rain. In this way, this is a water cycle: evaporation of water, formation of clouds, and then downpour in the form of water, in the form of rain, or that is also called as precipitation. So this is called as water cycle. This water cycle is very important for the survival of living beings, but many a times we see that excess of this rain can also cause damage to the life and property of the human beings. So let's see what are the damages that are caused due to heavy rainfall. The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only a few days. So the distribution of rainfall is not same all over the world. Some of the world's part, or some of the parts of the nation as well as the world, they receive very scanty rainfall. मतलब वहाँ बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, जैसे 15-20 दिनों के लिए, मैं एक मंथ के लिए सपोज वहाँ पर रेनफॉल होता है, वो भी बहुत कम मिलीमीटर्स रेनफॉल होता है. और कुछ रीजन्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा और कंटिन्यू रेनफॉल होता है. थ्रू आउट द होल ईयर दे रिसीव द रेनफॉल. So this is how the distribution of water or distribution of rainfall is there. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. In India, there are main three seasons: summer, winter and rainy season. We receive rainfall in the month of June, July, August and September. October is called as, actually September is called as the month of retreating monsoon. 3 months, स्पेशली ये जो 3 months है, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 जो months हैं, तो इन 3 months में हेवी रेनफॉल होता है, और फिर इसके बाद सितंबर में रेनफॉल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी रिसीव द रेन. Most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief, especially after hot summers. The sowing of many crops depend on the arrival of monsoon. However, excess of rainfall may lead to many problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. बहुत बार ऐसे होता है कि जब हेवी रेनफॉल हो जाता है तो रिवर वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाता है. रिवर्स है, लेक्स है, डैम्स है, उनका जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगता है. और कभी कभी क्या हो जाता है कि डैम के जो वॉल्स होते हैं वो फूट जाते हैं, और फिर वो सारा वाटर लोकेलिटी में, ह्यूमन लोकेलिटी में चला जाता है. कभी देखो तो जो रिवर वाटर होता है वो रिवर बैंक्स पर जो विलेजेस है या फिर खेती वगैरह है, तो उसमें वो सारा वाटर चला जाता है. However, excess of rainfall may lead to many problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. The water may then spread over large areas, causing floods. The crop fields, forests, villages and cities may get submerged by water. In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. जब भी ऐसे हेवी रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से फ्लड आता है, और फ्लड की वजह से बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ है, जैसे फॉरेस्ट फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है. तो उसमें से सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में हम सबसे ज़्यादा कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर फेस करते हैं, तो वो है फ्लड का. बिकॉज वी हैव ओशंस ऑन आवर two sides. One side we have
this Himalaya, which are the ice covered mountain ranges. In this way we see that in our country flood is a major natural disaster. So during floods, we because of the floods there is damage to crops, domestic animals, property and human life. During floods the animals living in the water also get carried away with the water. और रेनी सीजन में बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, मतलब जो गली में ऐसे ऐसे घूमने वाले एनिमल्स होते हैं, तो वो सारे एनिमल्स, सिर्फ गली में घूमने वाले ही नहीं, खेत में बांधे हुए वगैरह भी जो एनिमल्स होते हैं वो सारे वाटर करंट के साथ वो भी फ्लो हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तुमने कभी अगर वीडियो देखा है यूट्यूब पर, अगर तुमने देखा है फ्लड्स के, तो तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े इवन कार वगैरह भी, जब बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो कार वगैरह भी फ्लोइंग वाटर के साथ बह जाते हैं, वाटर करंट के साथ वो भी बह जाते हैं। तो ये इस तरह से लॉस होता है लोगों का। They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. Rains also affect the animals living in the soil. कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स या फिर जो लेक्स होते हैं, डैम्स होते हैं, उसमें जो वाटर एनिमल्स होते हैं, तो वो वाटर एनिमल्स फ्लड वाटर के साथ साथ घरों में या फिर सॉइल में कहाँ भी फंस जाते हैं। और जब फ्लड वाटर रिसीड हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे एनिमल्स ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। What happens if it does not rain for a long time? ये तो हुआ कि अगर एक्सेस रेनफॉल हुआ तो क्या होगा, अगर लेस रेनफॉल होगा, स्कैंटी रेनफॉल होगा तो क्या हो सकता है। देखो, रेनफॉल मीडियम होना ज़रूरी है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना चाहिए, कि ना नॉट टू मच और नॉट टू लेस। एक्सेस रेनफॉल कैन कॉज फ्लड एंड लैक ऑफ रेनफॉल कॉजेस ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट मतलब जिसको बोलते हैं अकाल, अकाल पड़ जाता है। अकाल मतलब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाते, ज़मीन सारी सूख जाती है, क्रॉप सारे सूख जाते हैं, प्लांट्स सारे ड्राई अप हो जाते हैं। तो इस तरह से उसको कहा जाता है अकाल इन हिंदी, बट वी कॉल इट इन इंग्लिश एज ड्रॉट कंडीशन। Can you imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. The level of water in ponds and wells of the region goes down, and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. अगर कंटिन्यूस रेनफॉल नहीं होता, 1 और 2 ईयर्स के लिए अगर रेनफॉल हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, ऐसे रीजन्स में जब रेनफॉल नहीं होता तो जो भी लेक्स है, डैम्स है, पॉन्ड्स है, रिवर है, वो सारे सूख जाते हैं और फिर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होता जाता है। In drought condition, it is difficult to get food and fodder. जब अकाल पड़ जाता है तो फिर हमें फूड भी नहीं मिलता और एनिमल्स के लिए फूडर भी नहीं मिलता। हमें फूड नहीं मिलता मतलब क्रॉप्स ग्रो नहीं होते, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होते तो हमको खाने के लिए कैसे मिलेगा। और एनिमल्स के लिए जो ड्राई ग्रास ज़रूरी होता है, ग्रास जो ज़रूरी होता है, वो भी उनको नहीं मिल पाता। In drought conditions, it is difficult to get food and fodder. You might have heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. Drought condition बहुत बेकार कंडीशन होती है, बहुत बुरी कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि लोग बिना, अगर सूख ये होता है, एक्सेस रेनफॉल होता है तो भी मुश्किल होती है, लेकिन कम से कम पीने के लिए पानी तो रहता है। लेकिन जब स्कैंटी रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता ही नहीं है 1 और 2 ईयर्स के लिए, तो फिर बहुत बुरी हालत होती है लोगों की, एनिमल्स की। पानी के लिए तरस के एनिमल्स मर जाते हैं, लोगों को भी एक प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है, प्रॉपर्टी उनकी जहाँ की वहाँ छोड़ के उनको जाना पड़ता है। कभी कभी तो देखो तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, खाने को कुछ अवेलेबल नहीं होता, वाटर अवेलेबल नहीं होता, मतलब बहुत पुअर कंडीशन लोगों की हो जाती है। People this die because of the hunger and thirst. Are you aware of the difficult faced
difficulties faced by the people living in these areas. What happens to the animals and the vegetation in these conditions? Try and find out about this by talking to your parents, neighbors, and by reading about it from newspaper and magazines. तो अगर तुमने कभी अभी तुम लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा क्योंकि भी तुम छोटे हो, तो तुम इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहते हो ड्रॉट कंडीशन या फ्लड कंडीशन के बारे में, तो तुम इस पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियो तुम्हें मिलेंगे जो फ्लड के से रिलेटेड है, फ्लड से होने वाला लॉस कौन सा होता है और कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं उसमें कि किसी कंट्री में आया हुआ जो फ्लड है या ड्रॉट कंडीशन है तो उसमें लोगों की कंडीशंस क्या होती है, ये सब दिखाने वाले बहुत सारे वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएंगे। ओके, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट दैट इज रिलेटेड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ शुड वी कंजर्व द वाटर, दैट पॉइंट वी विल डिस्कस इन आवर टुमारोज वीडियो। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो अगेन।